Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about different numerical problems relating to numerical differentiation, chapter number 23. We will use different formulas to solve these numerical problems. Before going toward these numerical problems, let us see the formulas which will be utilized to solve these numericals. These are the formulas for forward finite divided difference approximation. These are 6, 2 for first derivative and these 2 for second derivative. And on the right side, this factor shows the error, truncation error of the order of delta x, and this is delta x square. And similarly, this formula is for second derivative of forward finite divided difference approximation of the truncation error of the order of delta x, and this is for delta x square. These 6 formulas are for forward finite divided difference approximation. Similarly, 6 formulas are for backward finite divided difference approximation. And third approach is centered finite divided difference approximation. And for this approximation, there are also 6 formulas. Delta x means, in this case, delta x means step size. It can also be shown by small h. These formulas will be used for solving the numerical problems. Like first problem is compute forward and backward difference approximations of truncation error of the order of h and h square, and central difference approximations of truncation error of the order of h square and h to the power 4 for the first derivative of y is equal to cos x at x is equal to pi by 4 using a value of h is equal to pi by 12. Estimate the 2% relative error for each approximation. In this numerical, given function is this: y is equal to cos x and value of x is equal to pi by 4 and value of h is equal to pi by 12, and we have to use forward, backward and central difference approximations, but for only first derivative. We will not use the second derivative formulas. Let us solve this first problem. This is given function and this is the value of x, and this is step size, which can be denoted by delta x or h. First of all, we have to find the true value. How we can find true value? Given function is y is equal to cos x, its first derivative is minus sin x, and put the value of x which is equal to pi by 4. This will be equal to minus 0.7071067181. यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर तो एंगल की बात हो रही है साइन, कॉस और टेन, उसके अंदर कहीं पाई है तो अंडरस्टूड होगा कि पाई इज़ इक्वल टू 180, और अगर वैसे एंगल के अलावा बात है जैसे h इज इक्वल टू पाई बाई 12, तो यहाँ पर पाई होगा 22 डिवाइडेड बाय 7. तो आगे ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं एक्स आई माइनस 2, एक्स आई माइनस 1, एक्स आई प्लस 1, एक्स आई प्लस 2. तो ये आगे फार्मूलाज के अंदर यूज़ होंगी. एक्स आई माइनस 2 मीन्स वैल्यू ऑफ x माइनस 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ h.
and xi minus 1 means value of x minus 1 times value of h. Xi simply x value of x is equal to pi by 4, which is given, and xi plus 1 is equal to value of x plus 1 times value of h, and xi plus 2 is equal to value of x plus 2 times value of h. And in this column, functional value of these x values means our function is equal to cos x. So put the value of these, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने बनाई हैं इसको इसके अंदर रखें तो ये फंक्शनल वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो इनको हमने, ये वाला जो कॉलम है इसको आगे इसको हमने यूज़ करना है फार्मूलाज के अंदर। तो इस वैल्यू का मतलब है f ऑफ एक्स आई माइनस 2, ये वाली वैल्यू का मतलब है f ऑफ एक्स आई माइनस 1, और ये वाली f ऑफ एक्स आई प्लस 1, f ऑफ एक्स आई प्लस 2। तो आगे जब हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो उनके अंदर उसके अंदर उन फार्मूलाज के अंदर जब वैल्यूज़ जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो इस टेबल से हमें मिल जाएंगी। तो फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव और ट्रंकेशन एरर डेल्टा एक्स का फार्मूला है वो ये है। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई, तो यहाँ टेबल से वैल्यू ऑलरेडी बनाई गई है, इसको वहाँ से उठाएंगे। ये है एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 ये, और एफ ऑफ एक्स आई ये। तो जितनी भी वैल्यूज़ फार्मूलाज में रिक्वायर्ड होंगी वो ऑलरेडी पीछे टेबल के अंदर बनाई गई हैं। और पुट करें वैल्यूज़ को, और डेल्टा एक्स जो है वो एच से न्यूमेरिकल में डिनोट किया गया है, और उसकी वैल्यू है पाई बाई 12। इसके अंदर पाई की वैल्यू 180 होगी, इधर भी 180, लेकिन यहाँ पर 22/7 होगी। तो इसको सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू आती है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो माइंड में रखें कि अगर आप यहाँ पर पीछे ही वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं लहदा से, इन सब फंक्शनल वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से यहाँ पर इनके आंसर लिख देते हैं, तो एक दफ़ा आपने राउंड अप यहाँ पर कर लिया। इसी तरह आप एच की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्स की भी, तो एक दफ़ा राउंड अप करके आपने यहाँ पर लिख लिया। दूसरी दफ़ा जब आप इसको यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दूसरी दफ़ा यहाँ पर राउंड ऑफ होगा, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आपने उस तरह से नहीं करना, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करनी है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला जो है वो पूरे का पूरा कैलकुलेटर के अंदर ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट जो है रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालनी है। तो आपको एज यू नो वेल इट्स फार्मूला इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली थी पीछे ये वाली, ये इस फार्मूले में यूज़ होगी, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया है ये डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये तकरीबन 11.88% एरर है। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव का डेल्टा एक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला ये है। इसके लिए आप वैल्यूज़ जो हैं टेबल में पीछे बनाई गई हैं उनको उठाकर यहाँ पर पुट करें, और इस सारे को इकट्ठे को यहाँ पर अगर आप इसको अलहदा कैलकुलेट करके वैल्यू लिखेंगे, इसको अलहदा करके लिखेंगे, इसको अलहदा करके लिखेंगे, और फिर अलहदा से डिवाइड करेंगे, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 12, और फिर बाद में सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर शायद ये ना आए। तो आपने एक ही दफ़ा इस सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर पुट करके सिंगल स्टेप के अंदर आपने ये आंसर लेके आना है। तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट यही आएगा, एंड फिगर तक यही आना चाहिए। उसके लिए आपको कैलकुलेटर जो है यूज़ करने की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट इसका
जो रिलेटिव एरर है, ट्रू एरर, वो ट्रू वैल्यू माइनस दिस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज़ 2.67%। कीप इन माइंड रहे कि ये वाला एरर ज़्यादा है, ये वाला कम है। आप जैसे जैसे ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर ज़्यादा होगा तो यानी ये जो है ये डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो पीछे वाला जो था वो डेल्टा एक्स था, तो जिस तरह इसका डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा एक्स 4, तो उसके लिए एरर की जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। और नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। इसके लिए डेल्टा एक्स के लिए ये वाला फार्मूला और डेल्टा एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला फार्मूला। तो इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करें जो टेबल में बनाई गई हैं, जो रिक्वायर्ड है वहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करें। तो इस केस के अंदर रिलेटिव एरर जो ट्रू परसेंट रिलेटिव एरर आती है वो 14.15 है, और नेक्स्ट केस के अंदर ये 1.79% है। इसी तरह सेंट्रल या सेंट्रल फाइनाइट डिवाइडेड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूलाज जो हैं दोनों जो ट्रंकेशन एरर्स हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स 4 के लिए वो ये हैं। इनको आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें, जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो टेबल से उठाएं और यहाँ पर रख कर इसको कैलकुलेट करें, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन। तो इसमें भी ज़रा देखें कि डेल्टा एक्स 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर के अंदर 1.14% है, जब उसका ऑर्डर इंक्रीज़ हुआ तो एरर कम हो गया 0.02%। This is first numerical in which requirement was to utilize the forward, backward and central difference approximations of the given orders of truncation errors। और इसमें फंक्शन गिवन था और x की वैल्यू थी और स्टेप साइज़ की वैल्यू थी, तो हमने पहले टेबल बनाया, फिर उसके बाद फार्मूला से लिखकर जो वैल्यू चाहिए थी वो टेबल से उठाकर उसमें पुट की, और यूँ हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करके फिर उसका ट्रू एरर निकाला। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 23.2। रिपीट प्रॉब्लम नंबर 23.1 बट फॉर y इज़ इक्वल टू log x। यहाँ पर फंक्शन था y इज़ इक्वल टू cos x, यहाँ है y इज़ इक्वल टू log x, और यहाँ पर x की वैल्यू π/4 थी, यहाँ पर है 25। यहाँ पर स्टेप साइज़ जो है h इज़ इक्वल टू π/12 था, यहाँ पर 2 है। तो बाकी सब फार्मूला सेम रहेंगे। उसी तरीके से आप पहले जो है वो ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, फिर टेबल बना लेंगे, जो वैल्यूज़ फार्मूलाज में चाहिए उनके लिए पहले से टेबल बना लें, और फिर उसी टेबल में से फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। और थर्ड न्यूमेरिकल भी इसी तरह से है। यूज सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू e पावर x। अब यहाँ पर फंक्शन जो गिवन है वो ये है y इज़ इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x, और x की वैल्यू 2 है और h जो है 0.1 है, या डेल्टा x, दोनों मसलन इससे डिनोट कर सकते हैं, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। और यहाँ पर आपने यूज़ करना है सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी दोनों ही, और ट्रंकेशन एरर भी दोनों ही, h² और h4। मींस कि आपने सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के तमाम फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ये वाले। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के दो फार्मूलाज x डेल्टा x के और डेल्टा x4 के लिए, और ये सेकंड डेरिवेटिव के दो फार्मूलाज डेल्टा x के और डेल्टा x4। You can derive these all formulas by yourself. For forward finite difference approximation, backward
and for central by utilizing the chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में 4.1.3 आर्टिकल है, उसके अंदर ये फार्मूलाज जो हैं इनको डिस्कस किया गया है। टेलर सीरीज़ जो चैप्टर नंबर 4 है, ट्रंकेशन एरर्स एंड टेलर सीरीज़, तो विद इन डिटेल आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और ख़ुद से ड्राइव भी कर सकते हैं। You can also do numerical number 23.3 by yourself. Next is 23.4. Use Richardson extrapolation to estimate the first derivative of y is equal to cos x at x is equal to pi by 4 using step sizes of h1 is equal to pi by 3 and h2 is equal to pi by 6. Employ central differences of truncation error of the order of h square for the initial estimates. Let us solve this problem 23.4. हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉज x और वैल्यू ऑफ x है पाई बाई 4 और h1 जो है वो पाई बाई 3 और h2 पाई बाई 6 और इसकी ट्रू वैल्यू आप अगर निकाल लें तो इस फंक्शन की, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन निकालनी आनी चाहिए। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें एक्स की जो कि पाई बाई 4 है, तो ये आंसर आएगा। अब जो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला है उसके अंदर एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई प्लस 1 यूज़ होंगे, तो उसकी हमने फंक्शनल वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्स आई माइनस 1 मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 टाइम्स स्टेप साइज या h. एक्स आई प्लस 1 मीन्स वैल्यू ऑफ x प्लस 1 टाइम्स वैल्यू ऑफ h। तो चूँकि दो h गिवन है, h1 और h2 दोनों के लिए अलग-अलग x की वैल्यूज़ भी और फिर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ भी इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती हैं। यहाँ वैल्यूज़ इसलिए नहीं निकाली कैलकुलेटर से, जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तभी निकालेंगे, यहाँ पर निकाल कर फिर राउंड ऑफ एरर आएगा। तो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला जो है वो यूँ है, DH1 मीन्स D पाई बाई 3 यानी कि H1 की वैल्यू, तो उसके लिए सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन उसने बोला था, तो सेंट्रल के लिए ये वाला फार्मूला है। और वैल्यूज़ यहाँ से आप उठाएं एफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, तो ये कॉज 7 पाई बाई 12 माइनस कॉज इंटू माइनस पाई बाई 12 और स्टेप साइज हमारे पास पाई बाई 3 है तो 2 इंटू पाई बाई 3, इसको एक ही स्टेप के अंदर कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा। इसी तरह H2 यहाँ पर पाई बाई 6 है, तो इसके लिए जो फंक्शनल वैल्यूज़ बनाई गई हैं वो ये हैं, तो इनको पुट करें यहाँ पर और आंसर निकालें तो ये तकरीबन ये आएगा -0.675237 अब रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला जो है वो ये है 4/3 DH2 माइनस 1/3 DH1। तो इसके अंदर DH2 की और DH1 की वैल्यूज़ पुट करें तो ये आंसर आएगा -0.7053921116। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने की बजाय इसी को यहाँ पर पुट करें, इधर DH2 की जगह पर ये वाला पूरा जो है इसको पुट करें और DH1 की जगह पर इस वैल्यू की बजाय आप ये वाला पुट करें, तो वो फिर बनेगा सिंगल स्टेप। ये भी 2 स्टेप बन गए हैं, लेकिन आप सिंगल स्टेप में ही करें इसको, ताकि 100% जो है ना आपका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। तो ये है रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला, जिसमें DH2 रिक्वायर्ड है और DH1 रिक्वायर्ड है, और DH2 और DH1 जो है उनके लिए फार्मूलाज कौन से यूज़ करने हैं वो उसने बताया है फॉर सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन। नेक्स्ट
23.5 repeat problem number 23.4 but for the first derivative of natural log of x। अब यहाँ पर फंक्शन जो था वो cos x था, यहाँ पर होगा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और यहाँ पर x की वैल्यू π/4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और स्टेप साइज़ का भी फ़र्क है। यहाँ पर h1 π/3 और π/6 था h2 और यहाँ पर h1 2 है और h2 1 है। तो वही फार्मूलाज जो हैं वो आपने लगाकर टेबल बनाने लिया है और टेबल में से वैल्यूज़ उठा लेनी है, फार्मूलाज में पुट करके आपने इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है 23.8 कंप्यूट द फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ऑफ h4 ट्रंकेशन एरर ऑफ द ऑर्डर ऑफ h⁴ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द स्पेसिफाइड लोकेशन एंड फॉर स्पेसिफाइड स्टेप साइज। अब ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनके अगेंस्ट जो है वो x की वैल्यूज़ भी गिवन है और स्टेप साइज़ भी गिवन है। तो आपने सबसे पहले इनमें जो है वो एनालिटिकली सॉल्व करना है, मींस ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है, इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इसको पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या होगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब 2x प्लस 4 के अंदर x की वैल्यू पुट करें तो वो 4 आएगी। इस जो पोलिनोमियल है ये फंक्शन है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आ गया आपके पास ट्रू वैल्यू। इसी तरह आपने सब की ट्रू वैल्यूज़ निकाल लेनी है और फिर आपने यूज़ करना है फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, ये h⁴ वाला फार्मूला, ये वाला। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव सेंट्रल डिफरेंस और h⁴ ये फार्मूला यूज़ होगा तमाम जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। अब ये वाला फार्मूला उठाएं, वहाँ पर यहाँ से उठाएं और इसमें जो रिक्वायर्ड है f ऑफ xi प्लस 2, f ऑफ xi प्लस 1, f ऑफ xi माइनस 1, f ऑफ xi माइनस 2, इन की वैल्यूज़ निकालें पहले, फिर फंक्शनल वैल्यूज़ निकालें और इस फॉर्मूले में पुट करें और यूँ जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली है उसको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के साथ आपने परसेंट रिलेटिव एरर भी निकालना है जो एंड पे है। कंपेयर योर रिजल्ट्स विद द एनालिटिकल सोल्यूशन, इसका मतलब यही है कि आपने रिलेटिव एरर निकालना है हर पार्ट के लिए। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है, फार्मूला उठाना है वहाँ से और उसकी वैल्यूज़ जो हैं x की वो निकाल लें, फिर फंक्शनल वैल्यूज़ जैसे टेबल बनाया था पीछे ऐसे ही बना लें और फिर पुट कर दें और कंपेयर कर लें उस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है 23.9 द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम फॉर अ रॉकेट। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। यूज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टू एस्टिमेट द रॉकेट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट ईच टाइम। हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी का मतलब है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूलाज और एक्सीलरेशन मींस सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको 23.9 यहाँ पर आपने खुद से एनालाइज करना है व्हाट इज स्टेप साइज। यू कैन एस्टिमेट बाय योर सेल्फ। ये देखें 25, 50, 75, तो किसी दो का आपस में डिफरेंस ले लें, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेप साइज, जो कि 25 बनता है। तो वेलोसिटी के लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और लास्ट पॉइंट के लिए ये वाला यूज़ होगा और सेंट्रल पॉइंट के लिए ये वाला यूज़ होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला और लास्ट पॉइंट के लिए बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, और
सेंटर में जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन वाले फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे, लेकिन उसने साथ में ये बताया है कि ट्रंकेशन एरर का ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। अच्छा, मेंशन नहीं है इसमें, तो आप जो है वो एक्स स्क्वायर वाला, डेल्टा एक्स स्क्वायर वाला, चूँकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो आप उसी तरीके से जो उसको एक्स को रिप्लेस कर लें टी के साथ। तो वेलोसिटी के लिए ये तीन फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये वाला फर्स्ट पॉइंट के लिए ये फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, और ये वाली बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, और ये वाली सेंट्रल। तो फर्स्ट और लास्ट के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और सेंटर वाली तमाम के लिए सेंट्रल अप्रोक्सीमेशंस यूज़ होंगी। और इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए जो है सेकंड डेरिवेटिव यूज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए वही फॉरवर्ड, और लास्ट पॉइंट के लिए बैकवर्ड, और सेंट्रल पॉइंट्स के लिए सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन। तो ये फार्मूलाज यूज़ करके इस तरह का आप जो है वो बना सकते हैं। जब आप जिस पॉइंट पर आप खड़े होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस पॉइंट की बात करते हैं पहले की, तो इसके लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी ये, तो ये वाला जो टी आई है वो ज़ीरो होगा, ये वाला एफ ऑफ टी आई ज़ीरो होगा, और टी आई प्लस टू जो है वो ये वाला होगा 58, एफ ऑफ टी आई प्लस टू 58 होगा, और ये वाला जो है 32 एफ ऑफ टी आई प्लस वन। यानी जिस पॉइंट पर आप खड़े होंगे वो एफ ऑफ टी आई होगा, और उससे अगले वाला एफ ऑफ टी आई प्लस वन, और उससे अगले वाला एफ ऑफ टी आई प्लस टू, और उससे अगले वाला एफ ऑफ टी आई प्लस थ्री, और इसी तरह आप पीछे जा सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और ये एक्सेलरेशन, तो फार्मूला जो पीछे गिवन है वो वाले उठाएं, और इस पॉइंट में के लिए जब लगाएंगे तो ये वाला जो है वैल्यू ये होगी एफ ऑफ टी आई, और ये वाली एफ ऑफ टी आई प्लस वन, ये वाली एफ ऑफ टी आई प्लस टू, और ये वाली एफ ऑफ टी आई माइनस वन, एफ ऑफ टी आई माइनस टू। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड हो तो उस हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है, और फिर आपके पास ये आंसर्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए, ये हमने निकालना है, तो ये है इसके लिए फार्मूला। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है एफ ऑफ टी आई, तो एफ ऑफ टी आई है 100, और एफ ऑफ टी आई माइनस वन जो है वो है 92, और एफ ऑफ टी आई माइनस टू जो है वो है 78, और एफ ऑफ टी आई माइनस थ्री है 58। पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनमें आपको ये टेबल खुद से बनाना पड़ता था, यानी कि x की वैल्यूज़ और f ऑफ x की वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये आपने देखना है। और इसी तरह अगर हम सेंट्रल पॉइंट की बात करते हैं, ये सारे सेंट्रल पॉइंट हैं ये वाले पहला और आखिरी छोड़कर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बात करता हूँ, ये सेकंड लास्ट। तो सेंट्रल पॉइंट के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर टी आई प्लस वन रिक्वायर्ड है, हम यहाँ खड़े हैं, तो टी आई प्लस एफ ऑफ टी आई प्लस वन ये है 100, एफ ऑफ टी आई प्लस वन हम यहाँ खड़े हैं इस केस में 100 पर और 92 पर। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है एफ ऑफ टी आई प्लस वन, तो वो है 100, और एफ ऑफ टी आई ये बजाते खुद 92 है, और एफ ऑफ टी आई माइनस वन जो है वो 78 है। तो अब इस तरह आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.0096। इन दिस न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो आप वन बाय वन करके इन सारी वैल्यूज़ को वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास अल्टीमेटली ये आंसर्स आएंगे।
फार्मूलाज आपके पास गिवन हैं सारे, और वेलोसिटी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव, और पहले पॉइंट के लिए फॉरवर्ड और आखिरी के लिए बैकवर्ड अप्रॉक्सीमेशन, और दरमियान वाले जितनी भी हैं उसके लिए सेंट्रल अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ होंगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। Problem number 23.13. Recall that for the falling parachute problem, the velocity is given by, velocity जो है वो इसकी इक्वेशन ये गिवन है, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। जबकि g की वैल्यू गिवन है 9.81, m की वैल्यू है 70 एंड c इज़ इक्वल टू 12। इसमें आपने b और d पार्ट करना है। तो आपने एनालिटिकली इंटीग्रेट इक्वेशन, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद द इनिशियल कंडीशन दैट d इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। एवेल्यूएट द रिजल्ट एट t इज इक्वल टू 10 टू कन्फर्म a। तो सिंपली आप जिस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह से इस इक्वेशन को, ये सारा वाला ये जो है जी एम ओवर सी कांस्टेंट है, इस सारे की को इंटीग्रेट करके आपने साइडों पे बड़ी ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेट करके जो भी क्वेश्चन बने उसके साइडों पे बड़ी ब्रैकेट, और इधर ऊपर 10 नीचे 0, ये 10 और 0 गिवन है, 10 और 0 के दरमियान आपने इंटीग्रेट करना है। और आपको पता है फिर फर्दर जो है वो एक दफ़ा 10 पुट करेंगे t की वैल्यूज़ माइनस ये सारा जितना भी इसका बनेगा इंटीग्रल वैल्यू, उसके अंदर t की वैल्यू 10 पुट करेंगे माइनस t की वैल्यू 0, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट है, इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। जब आप इस इक्वेशन को, ये वाला कांस्टेंट है यानी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसके अंदर जी एम और सी गिवन है, पहले ही जी भी गिवन है, एम भी और सी भी, तो आपको टी चाहिए होगा, तो टी उसने बताया है 10, तो उसकी वैल्यू पुट करके आप जो है एक्सीलरेशन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास एक्सीलरेशन आता है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिगर में। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 23.21. use the following data to find the velocity and acceleration at t is equal to 10 second। तो पीछे जो हमने ये वाला किया था, न्यूमेरिकल नंबर 23.9, ये तो यहाँ पर हमने सब के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था और यूज़ किया था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट पर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और यूज़ करने हैं सेंटर्ड फाइनाइट डिफरेंस और फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूलाज, तीनों यानी कि यूज़ करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकंड ऑर्डर भी। फर्स्ट ऑर्डर से आपके पास वेलोसिटी आएगी और सेकंड ऑर्डर से आपके पास एक्सीलरेशन आएगा, और t इज़ इक्वल टू 10, इस पॉइंट को आपने कंसिडर करना है। सिर्फ इस पॉइंट पर आपने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। और ये जो लिखा है यूज़ सेकंड ऑर्डर करेक्ट, इट मीन्स जो ट्रंकेशन एरर है वो फार्मूलाज के अंदर वो डेल्टा एक्स स्केयर वाला यूज़ करना है आपने। सेकंड ऑर्डर मींस डेल्टा एक्स स्केयर वाला यूज़ करना है आपने, यानी कि फॉरवर्ड के अंदर आप जो वेलोसिटी के लिए ये और एक्सेलरेशन के लिए ये यूज़ करेंगे।
और बैकवर्ड के अंदर वेलोसिटी के लिए ये, और एक्सेलरेशन के लिए ये वाला डेल्टा एक्स स्क्वायर वाला, और सेंट्रल के लिए डेल्टा एक्स स्क्वायर ये वाला वेलोसिटी के लिए, और एक्सेलरेशन के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 23.25. You have to measure the flow rate of water through a small pipe. In order to do it, you place a bucket at the pipe's outlet and measure the volume in the bucket as a function of time as tabulated below. Estimate the flow rate at t is equal to 7 second. तो टाइम गिवन है 0, 1, 5, 8 और वॉल्यूम गिवन है 0, 1, 8 और 16.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल में और बाकी न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है। इसके अंदर स्टेप साइज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। बाकी आपने जो पीछे वाले जितने भी किए हैं वहाँ पर स्टेप साइज़ कांस्टेंट था, यहाँ पर स्टेप साइज़ कांस्टेंट नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास टाइम और फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि वॉल्यूम वो भी गिवन है। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ अनइक्वली स्पेस्ड डेटा। इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और इसमें हमें ti-1 और ti और ti+1 रिक्वायर्ड हैं और f ऑफ ti-1 f ऑफ ti और f ऑफ ti+1 रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो गिवन डाटा है इसके अंदर ये वाला ti-1 है, ये ti और ये ti+1, ये f ऑफ ti-1, ये f ऑफ ti, ये f ऑफ ti+1। इसको टेबल की शक्ल में यहाँ बना दिया गया है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप इसको पुट करें इस फार्मूले में, तो ये हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा 2.95 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। It should be in cubic centimeter per second as the unit of volume is cubic centimeter. This is all about today's lecture. You can also solve other numericals and you can also consult other books. Thank you very much.